जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada. Netai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Netai Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। We are reading from Srimad Bhagavatam, second canto, 9th chapter, 6th verse. दूसरे स्कंद के 9वें चैप्टर का 6वां श्लोक। सचिंतयन् द्वि अक्षरम् एकदांशि
सचिन्तयन् द्वि अक्षरम् एकदा अंशी उपाश्रृणोत् द्विर्गदितं वचो विभु। उपाश्रृणोत् द्विर्गदितं वचो विभु। स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशाम् स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशाम् निष्किञ्चनां नृप यत् धनं विदु। निष्किञ्चनानां नृप यत् धनं विदु। सचिन्तयन् द्वि अक्षरम् एकदांशी सचिन्तयन् द्वि अक्षरम् एकदा अंभसी। उपाश्रृणोत् द्विर्गदितं वचो विभु। स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशाम् निष्किञ्चनानां नृप यत् धनं विदु। सचिन्तयन् द्वि अक्षरम् एकादम्भसी। उपाश्रृणोत् द्विर्गदितं वचो विभु। स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशम् निष्किञ्चनानां नृप यत् धनं विदु। प्रभु जी करेंगे सर। सचिन्तयन् स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशम् निष्किञ्चनानां नृप यत् धनं विदु। माता जी बोले। उपाश्रृणोत् द्विर्गदितं वचो विभु। स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशाम् निष्किञ्चनानां नृप यत् धनं विदु। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की। ये इसमें खोल पहले इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ। While thus engaged in thinking in water, Brahmaji heard twice from nearby two syllables joined together. One of the syllables was taken from 16th and other from 21st of the Sparsha alphabets, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. Purport by Srila Prabhupada ki. In Sanskrit language, the consonant alphabets are divided into two divisions, namely Sparsha Varnas and Talva Varnas.
From Ka to Ma, the letters are known as Sparsha Varnas, and 16th of the group is called Ta, whereas the 21st letter is called Pa. So, when they are joined together, the word Tapa or penance is constructed. This penance is the beauty and wealth of Brahmanas and the renounced order of life. According to Bhagavad philosophy, every human being is meant simply for this Tapa, and for no other business, because by penance only one can realize his self, and self-realization, not sense gratification, is the business of human life. This tapa of penance was begun from very beginning of the creation, and it was first adopted by Supreme Spiritual Master Lord Brahma. By tapasya only one can get the profit of human life, and not by a polished civilization of animal life. The animal does not know anything except sense gratification in the jurisdiction of eat, drink, be merry, and enjoy. But the human being is made to undergo tapasya for going back to Godhead, back home. When Lord Brahma was perplexed about how to construct the material manifestations in the universe, and went down within the water to find out the means and the source of his lotus seed, he heard the word tapa vibrated twice. Taking the path of tapa is the second birth of the desiring disciple. The word upashrinot is very significant. It is similar to upanayana, or bringing the disciple nearer to the spiritual master for the path of tapa. So Brahmaji was thus initiated by Lord Krishna, and this fact is corroborated by Brahmaji himself in his book, the Brahma Samhita. In the Brahma Samhita, Lord Brahma has sung in every verse, Govindam Adi Purusham Tamaham Vajami. Thus Brahma was initiated by Krishna mantra, by Lord Krishna himself, and thus he became a Vaishnava or a devotee of the Lord before he was able to construct the huge universe. It is stated in Brahma Samhita that Lord Brahma was initiated into the 18-letter Krishna mantra, which is generally accepted by all the devotees of Lord Krishna. We follow the same principle because we belong to the discipline, follow the same principle because we belong to the Brahma Sampradaya. Directly in the disciplic chain from Brahma to Narad, from Narad to Vyas, from Vyas to Madhav Muni, from Madhav Muni to Madhavendra Puri, from Madhavendra Puri to Ishwar Puri, from Ishwar Puri to Lord Chaitanya, and gradually to His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati, our Divine Master. One who is thus initiated in the disciplic succession is able to achieve the same result or power of creation. Chanting of this holy mantra is the only shelter of the desireless pure devotees of the Lord. Chanting of this holy mantra is the only shelter of the desireless pure devotee of the Lord. Chanting of this holy mantra is the only shelter of the desireless pure devotee of the Lord. Simply by such tapasya or penance, the devotee of the Lord achieve all perfections like Lord Brahma. हिंदी में हम इसको रीड करेंगे. ट्रांसलेशन. इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो बार सुने. इसमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था. ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए. तात्पर्य. संस्कृत भाषा में व्यंजन शब्द के दो विभाग हैं, स्पर्श वर्ण तथा तालव्य वर्ण. क से लेकर म तक के अक्षर स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, और इस समूह का 16वां अक्षर त है, जबकि 21वां अक्षर प है. तो कौन से दो अक्षरों की बात हो रही है? त और प. त और प मिलकर क्या बने? तप. तपह, तपस्या. त और प मिलकर तप. अतः जब वे दोनों मिल जाते हैं तो तप शब्द अर्थात तपस्या बन जाता है. यह तप ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का सौंदर्य धन है. भागवत दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है
और किसी निमित्त नहीं, क्योंकि एकमात्र तपस्या के द्वारा ही उसे आत्मबोध हो सकता है। मानव जीवन का धर्म इंद्रिय तृप्ति नहीं अपितु आत्म साक्षात्कार है। यह तब सृष्टि के आदि काल से ही चला आ रहा है और सर्वप्रथम परम गुरु ब्रह्मा जी ने इसे ग्रहण किया था। तपस्या के ही द्वारा मनुष्य को मानव जीवन का लाभ प्राप्त हो सकता है, पशु जीवन की दिखलावटी सभ्यता से नहीं। पशु खाने पीने तथा मजा उड़ाने द्वारा इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, किंतु मनुष्य का जन्म तपस्या करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए हुआ है। जब ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्मांड की सृष्टि किस प्रकार की जाए, तो वह कमल आसन के स्तोत्र तथा सृष्टि के साधन का पता लगाने के लिए जल के भीतर गए, जहां उन्होंने तप शब्द की 2 बार गूंज सुनी। तप के पद को ग्रहण करना जिज्ञासु का मानो दूसरा जन्म हो। यहाँ पर उपाश्रनोत शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उपनयन के समान है, अर्थात तप के मार्ग पर शिष्य को गुरु के समीप लाने के समान है। अतः ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दीक्षा दी और इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा ने अपने कृत ब्रह्म संहिता में की है। ब्रह्म संहिता में प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मा जी ने गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि स्तुति की है। इस तरह श्री कृष्ण ने कृष्ण महामंत्र द्वारा ब्रह्मा जी को दीक्षा दी, जिससे विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पूर्व वे वैष्णव अर्थात भगवान के भक्त हो सके। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि ब्रह्मा को 18 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र में दीक्षित किया गया, जिसे प्राय कृष्ण के समस्त भक्त स्वीकार करते हैं। हम उसी सिद्धांत का पालन करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्म संप्रदाय से संबंध है, जो सीधे ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्व मुनि, मध्व मुनि से माधवेंद्रपुरी तथा माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से भगवान चैतन्य और क्रमशः हमारे गुरु भगवत कृपा मूर्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा में है। इस प्रकार जो मनुष्य शिष्य परंपरा में दीक्षित होता है, उसे वैसे ही फल या सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है। कामना रहित भगवत भक्त के लिए इस पवित्र मंत्र का जाप ही एकमात्र आसरा है। केवल ऐसी तपस्या से भगवत भक्त ब्रह्मा जी के समान सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। और एक सेकेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का। ब्रह्मा जी एक बार जैसे ही विष्णु के नाभि कमल से लोटस का स्टेम उत्पन्न होता है, कमल का फूल उत्पन्न होता है। माता जी थोड़ा आगे आ सकते हैं, पीछे वाले माता जी भी आगे आ सकते हैं थोड़ा। तो लोटस का स्टेम उत्पन्न होता है, उसमें से कमल का फूल उत्पन्न होता है, और उस कमल के फूल में से कौन आते हैं? जब वो फूल खुलता है तो उसमें कौन होते हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और एक बार ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट होते हैं तो बिल्कुल बिविल्डर हो जाते हैं। व्हाट इज, हु एम आई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता। एक बार एकदम ऐसे, जैसे कभी ऐसे होता है ना, हम एकदम से नींद से उठते हैं और हमें एकदम से लगता है कहाँ आ गए। हुआ है कभी? कैसे, कितनों के साथ ऐसे हुआ है? कहीं बाहर गए हुए होते हैं, एक बार ऐसे आँख खुलती है, उम्मीद तो ये होती है कि अपने घर की दीवारें आसपास नजर आए, पर कोई नई जगह होती है तो एकदम से ऐसा लगता है ये कौन सी जगह आ गई। तो पर हमें एक सेकंड के अंदर अंदर ज्ञान आ जाता है कि ये कौन सी जगह है, याद आ जाता है, सब कुछ स्मरण आ जाता है। पर सोचिए ब्रह्मा जी की क्या स्थिति थी। पहली बार आए थे, एकदम से कमल का फूल खिला, उसमें से बाहर निकले, जैसे कोई नींद से जागकर एकदम से पता करने की कोशिश करे ये मैं कहाँ हूँ और मैं हूँ कौन। अच्छा, हमें कम से कम ये तो पता होता है हम कौन है जब जगते हैं, सो एंड सो मेरा नाम है, सो एंड सो जगह मेरा। ब्रह्मा जी को तो ये भी नहीं पता और कौन सी जगह। इतना बिविल्डरिंग स्टेट था। हमें कभी भी भागवतम को समझना है तो एक चीज जरूर देखना चाहिए, व्हाट वाज द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस। समय कैसा था, सर्कमस्टांसेस कैसे थे, और जगह कौन सी थी, ये समझना बहुत जरूरी है भागवतम को समझ। तो ब्रह्मा जी का बिविल्डरिंग स्टेट हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कोई अपनी याददाश्त खो बैठा हो, उसकी आंखों पे कोई पट्टी बांध के कहीं ले गया हो और उसकी आंखें एकदम से खोली गई हो, तो वो एकदम से याददाश्त भी खो बैठा है, आंखें की पट्टी खोली, कुछ पता ही नहीं, और टेंशन में आ गए ब्रह्मा जी। और टेंशन में आ गए, और जिस कमल के फूल पर बैठे थे उस कमल के फूल पे बैठ के सोचा, कुछ समझ नहीं आया, तो नीचे था सागर था जिसमें विष्णु विश्राम कर रहे थे। तो सागर के अंदर चले गए, पानी में चले गए, बिल्कुल नीचे तक जाकर ढूंढने लग गए कि ये जो स्टेम का जो स्तोत्र है कहाँ है, वहीं पे कुछ पता चलेगा। तो वहां जाने लगे, कुछ नहीं पता चला। तो जब सागर की गहराइयों में जा रहे थे तो दो शब्द सुनाई दिए, तपह तपह, 2 बार बोला। अब ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं समझ आया तो ब्रह्मा जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तपस्या, तपह करना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मा जी ने जैसे ही समझ लिया कि तपस्या करना पड़ेगा, तभी आगे पता चलेगा कि व्हाट इज द सिचुएशन। तो 1000 सेलेस्टियल ईयर्स तक, हमारे 1000 साल नहीं, देवताओं के 1000 सालों तक तपस्या करी। हमारा 12 घंटे देवताओं के 6 महीने के बराबर होते हैं। जितना हमारा 12 घंटा होता है उतना देवताओं का क्या होता है, 6 महीना। तो देवताओं का जो 1000 साल है उतना तपस्या किया सेलेस्टियल ईयर्स तक, और फिर उनको वैकुंठ का दर्शन हुआ, और फिर भगवान से इंस्ट्रक्शंस मिला सृष्टि का, रचना का पर्पस पता चला।
कि किस पर्पस के साथ वो प्रकट हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे सीनियर मोस्ट, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमारे सीनियर मोस्ट जो एंसेस्टर है वो कौन है? ब्रह्मा। उन्होंने क्या एग्जाम्पलीफाई किया कि क्या करना है, क्या करना है? तपस्या। हाँ। और उसी से सेल्फ रियलाइजेशन, प्रभुपाद जी बोलते हैं, पर्पट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो किसकी तरफ अपने जीवन को लगाने का प्रयास करेगा? आत्म साक्षात्कार की ओर, अपने आप को समझने की ओर। और जो इंद्रिय, जो एक बेवकूफ, जिसमें बुद्धि नहीं है जिस व्यक्ति में, वो अपना पूरा जीवन सिर्फ किस में देगा? इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। मेरा जितना धन है सब मैं रख लूं, कहीं मेरी इंद्रिय तृप्ति में कमी तो नहीं हो जाएगी? इंद्रिय तृप्ति सिर्फ इस चीज पे फोकस रहता। बट कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरिपद नीति रे। भजहूं रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। उनका चरण जब किसी के सिर पे पड़ जाता, अभय चरण है उनका, नो फियर। यदि भगवान का चरण सिर पर पड़ जाए, नो फियर देन। अभय चरणारविंद रे, कमल दल जल जीवन टलमल। जैसे कमल के पत्ते पे एक पानी का ड्रॉप जो होता है वो किसी भी समय फिसल कर गिर सकता है, इसी प्रकार जो जीवन है वो किसी भी प्रकार फिसल के गिर सकता है। तो जितना समय है रश करना चाहिए, धीरे धीरे नहीं। प्रभु जी अभी थोड़ा आराम से चलने दीजिए, आपको बहुत जल्दी है प्रभु जी, हर चीज की ना बहुत जल्दी है, थोड़ा आराम से चलने दीजिए। पर माता जी समझिए, कमल दल जल जीवन टलमल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वैष्णव भजन कह रहे हैं। ये कभी भी हाथ से फिसल सकता है। क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे? क्यों इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे? क्यों कंठी माला नहीं पहन रहे? क्यों अपना समय और बर्बाद कर रहे हैं? ये किसी भी समय फिसल सकता है। मत परवाह करिए किसी की, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक बार एक बच्चा और एक फादर एक गधा खरीदते हैं, और वो गधा खरीदते हैं तो गधा साथ लेके जा रहे होते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अरे हम धोती कुर्ता पहनकर कहीं बाहर निकल गए तो लोग क्या कहेंगे? सिर पे तिलक लगा के बाहर निकल गए, लोग क्या कहेंगे? कंठी माला पहनकर लोग क्या कहेंगे? अरे जब लोग शराब पीते तब लोग सोचते क्या कहेंगे, सिगरेट पीते सरेआम पब्लिक में तब सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, तब तो नहीं सोचते। तो फिर अभी क्यों सोचना है? समझने वाली बात है। तो एक गधा और गधे को एक खरीदा, एक बाप बेटे ने गधे को खरीदा, दोनों जा रहे थे, गधा साथ में चल रहा था। लोग कह रहे हैं अरे देखो कितने पागल लोग हैं, गधा खरीदा और पैदल चल रहे हैं, गधे पे बैठ जाए, कितने पागल लोग हैं। तो दोनों बाप बेटे गधे पे चढ़ जाते। थोड़ा आगे जाते लोग कहते अरे कितने कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों बाप बेटे गधे पे चढ़कर बैठ गए, कितने निर्दयी लोग हैं। अब समझ नहीं आता क्या करें। तो बाप उतर जाता है, कहते ठीक है ऐसे, बेटा बैठा रहता, आगे चलते, अरे अरे कैसा बेटा है, इसको अपने बाप की परवाह नहीं, कैसा बेटा है ये, बाप चल रहा है बेटा बैठा है, बाप को बैठने देना चाहिए। तो बेटा उतर जाता है, बाप चढ़ जाता है, अरे कैसा बाप है, छोटे बच्चे को इतनी धूप में पैदल चला रहा है और खुद यंग होते हुए भी गधे पे चढ़ के जा रहा है, कैसा बाप है ये, ऐसा बाप ना होने से ना होना अच्छा। तो अब बाप भी उतर जाता है। तो आगे चल के फिर अरे अरे कैसे लोग है, गधा खरीदा है,
फिर भी गधे के साथ चल रहे, गधे पे चढ़ नहीं रहे। लास्ट में दोनों बाप बेटे तंग आके गधे को उठा लेते हैं। लोग बोलते अरे अरे कैसे बाप बेटे हैं, गधा खरीदा और गधे को अपने ऊपर चढ़ाकर घुमा रहे। ये नहीं कि गधे पर बैठ जाए। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो कहते रहेंगे। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। तो इसका ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। जो भी आप करें कमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। इसका परवाह करने की जगह क्या करो, क्या करो। व्हाट इज द परफेक्शन? तपस्या। दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम ब्रह्मा द क्रिएटर। क्रिएटर से हम ये सीख रहे हैं तपस्या करना, और हम नहीं कर रहे। लाइक फादर लाइक सन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हु इज द फादर? एटलीस्ट मटीरियल क्रिएशन में ब्रह्मा। तो जब वो तपस्या कर रहे हैं तो अब हमें भी तपस्या करना चाहिए। और यदि कोई, ये श्लोक बताता है, यदि कोई ब्रह्मा की तरह तपस्या करने पे उतारू हो जाए तो उसको ब्रह्मा के जैसा लेवल भी मिल सकता है। ब्रह्मा जैसा लेवल, इतना बड़ा सेवा भगवान का। हम छोटा मोटा सेवा करते कितना प्राइड फील करने लग जाते हैं। थोड़ा सा प्रीचिंग सर्विसेज किया, थोड़े से लोगों को इकट्ठा किया, प्राइड आ गया मन में। थोड़ा सा भोग बना दिया, प्राइड आ गया मन में। थोड़ा सा कीर्तन कर लिया, प्राइड आ गया मन में। तो कितने सारे ऑप्शंस है। ब्रह्मा ने पूरा सृष्टि का रचना कर दिया, पर क्योंकि तपस्या कर रहे थे तो प्राइड नहीं था, अहंकार एक बारी भी नहीं आया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी इस श्लोक में कहते हैं, one can have the same facility through unalloyed devotees of the Lord through spiritual instructions, and also though the bona fide spiritual master available to the sincere soul through the bona fide spiritual master। और तपस्या करने के लिए किसको अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है, ये भी ब्रह्मा जी आध्यात्मिक गुरु, बोनाफाइड गुरु, ऐसे नहीं किसी को भी गुरु बनाकर जो मिल गया चार बातें अच्छी बोल दी। देखो देयर इज अ डिफरेंस। कोई बंदा अच्छा वक्ता हो सकता है, ओरेटर अच्छा हो सकता है, स्पीकर अच्छा हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव हो। तो किसी को भी थोड़ा सा अच्छा बोलते हुए सुना, पीले वस्त्र धारण करके बैठ लिए, लंबी लंबी जटाएं रख ली, हाँ, और दो चार सेलिब्रिटी वहां पर पहुंच गए, और जो सेलिब्रिटी के दम पर फेमस हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वी हैव सीन पीपल गेटिंग फेमस लाइक दैट, yet they demotivate एकादशी व्रतास। एकादशी व्रत ही मत करो, ये सिखा देते हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी, आई डोंट से मैक्सिमम, मेजॉरिटी काफी हद तक जो सो कॉल्ड गुरुज हैं वो किस प्रकार गुरु बने कोई जानता भी नहीं था। कोई सेलिब्रिटी चला गया मिलने के लिए, कोई विराट कोहली चला गया, कोई बड़ा व्यक्ति चला गया, कोई क्रिकेटर चला गया, कोई फिल्म स्टार चला गया मिलने के लिए। बस वहीं से क्या हुआ, इट स्टार्टेड, और लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। अरे भैया, लोगों तो फिल्म स्टार के, लोग तो इतने पागल है, फिल्म स्टार का हेयर स्टाइल भी कॉपी करना शुरू कर देते, उसको भी फॉलो करना शुरू कर देते। लोग तो इतने पागल है। प्रभुपाद जी फेमस हुए, प्रभुपाद जी तो किसी फिल्म स्टार के दम पे फेमस नहीं हुए, किसी क्रिकेटर के दम पर फेमस नहीं हुए। टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में 1 साल तक संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने, यूएसए में जाकर बॉवरी स्ट्रीट में रहे, वृंदावन में नहीं बैठे थे। बॉवरी स्ट्रीट जो अड्डा था नशेड़ियों का, अटैक हुआ प्रभुपाद जी पे वहां पर नशेड़ियों के द्वारा कई बार। ब्रॉथल्स खुले पड़े थे वहां पर। जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला है, वो 4 के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वहां ब्रेक होते थे। उस जगह जाकर प्रभुपाद जी ने प्रचार करा। कोई फिल्म स्टार तो नहीं था, कोई क्रिकेटर तो नहीं था जो उनसे मिलने के लिए आ जाए और सोशल मीडिया पे वो फेमस हो जाए। एक दिन टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में बिल्कुल प्रभुपाद जी समझ नहीं आ रहा था करे क्या। गुरु का आदेश है। क्या है गुरु का आदेश?
भगवत नाम फैलाना, विश्व में भगवत नाम फैलाना। टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में चले गए, बैठकर एक पेड़ के नीचे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस प्रभुपाद ट्यून, हम इसलिए रोज ये सिंग करते हैं, इस ट्यून में कीर्तन करने लग गए। बहुत अच्छे सिंगर नहीं थे प्रभुपाद जी, और क्लास भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। वन मैन आर्मी तपस्या किसको कहते हैं? वन मैन आर्मी। खुद ही लोगों को इनवाइट करने जाते थे, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते थे, खुद ही लोगों को इनवाइट करने के लिए जाते थे, खुद ही क्लास देते थे, खुद ही क्लास का सेटअप करते थे। आज देखो, अभी मैं क्लास देने बैठा हूं, इमानिक प्रभु वगैरह ने क्लास का सेटअप किया, आदित्य प्रभु मृदंग बजाने के लिए थे, मैंने कीर्तन किया, पब्लिक बुलाने के लिए इतने बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें पोस्टर्स जा रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, कितना कुछ है। कुछ नहीं था। अंडरस्टैंड तपस्या, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, जिसमें प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को खड़ा किया। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा खड़ा करके चले गए कि चलो बाद में शिष्यों ने बहुत एक्सपैंड कर दिया। 108 मंदिर गिन के बना कर गए 10 सालों के अंदर अंदर। ये तपस्या, 108 मंदिर। खुद ही क्लास देते थे, खुद ही क्लास का सेटअप करते थे, खुद ही भोग बनाते थे, खुद ही प्रसाद वितरण करते थे। 1-to-1 कंसल्टेंसी, भक्त लोग आ जाते हैं, मिलने के लिए बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, घंटों घंटों बातें चलती है। एवरीथिंग सिंगल मैन आर्मी। कीर्तन खुद करते थे, मृदंग खुद बजाते थे, करताल खुद बजाते थे, हारमोनियम खुद बजाते थे। यहां तक कि धोती कुर्ता भक्तों को खुद पहनना सिखाया, माताओं को साड़ियां पहनना सिखाया, वैदिक तरीके से शादियां करी भक्तों की। फॉरेनर्स की शादियां हिंदू ट्रेडिशन नहीं कह सकते, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, वैष्णव कल्चर के अकॉर्डिंग मैरिजेस करे, बोनाफाइड मैरिजेस, दीक्षा सेरेमनीज करी, दीक्षा दिए, 5000 शिष्य बनाए। This was Prabhupada's तपस्या। That is why ISKCON is bona fide। ये वैष्णव संप्रदाय है। 4 लालों के पास चले जाने से, गुरु बनने से कुछ नहीं हो जाता। और हम हैं प्रभुपाद नुगास, हम रूपा नुगास हैं, प्रभुपाद नुगास है। व्हाट इज प्रभुपाद नुगास? फॉलोअर्स ऑफ प्रभु। नहीं प्रभु जी, वो तो प्रभुपाद जी थे, हम कहां उतने, हम तो नहीं उतना कर पाएंगे प्रभु जी। ये एक अलग लेवल का प्राइड है, ये एक अलग तरीके का प्राइड है, हम तो नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद, वो तो प्रभुपाद जी। अरे भाई, वो प्रभुपाद जी थे तो हम भी तो प्रभुपाद नुगास हैं। वो प्रभुपाद जी थे तो हम भी तो प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं। जान लगा देना चाहिए, तन से भी, मन से भी और धन से भी, तीनों तरीकों से। गिव एवरीथिंग टू कृष्णा। कभी शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। जो ये सोचते हैं कि शॉर्टेज हो जाएगी अगर हम भगवान को दे देंगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अक्षय पात्र है भगवान, अक्षय पात्र समझते हैं। यदि भगवान को देंगे और उत्पन्न होता जाएगा, और उत्पन्न होता जाएगा, और उत्पन्न होता जाएगा, बस देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, होगा उत्पन्न। मैंने देखा होते हुए। ये तपस्या भगवत गीता बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। भगवत गीता चाहिए मुझे, इंग्लिश भगवत गीता 3 तरह की तपस्याएं एक्सप्लेन करती है, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। जो जैसे जो जैन मुनि है, बहुत स्ट्रांग तपस्या करते हैं। तपस्या कैसा तपस्या जैन मुनि जो करते हैं? जो जैन में दीक्षा लेते हैं, हम तो बाल शेव करते हैं, हमारे भक्त लोग जो है, जो ब्रह्मचारीज हैं, बाल हटाते हैं, शेविंग करते हैं।
जैन बाल ऐसे नहीं, क्या एक एक बाल को पकड़ पकड़ कर उखाड़ते हैं। कितना पेनफुल है। उखाड़ते हैं और 17 चैप्टर खोल कर 17.14 तो उखाड़ते हैं एक एक बाल को, ताकि कोई जीव जंतु, कोई बैक्टीरियाज हो वो मरे ना, शेविंग से मरेंगे। हाँ। एक दिन खाते हैं, एक दिन तपस्या करते हैं, एक दिन खाते हैं, एक दिन कुछ नहीं खाते, एक दिन व्रत करते हैं। ये जैन मुनियों की बात बता रहा हूँ। हाँ। और खाते भी कितना, जो एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते। एक दिन खाते कितना, जितना एक बारी में मुंह में फिट हो जाए, बड़ा मुंह होने का होता है। एक बारी में जितना हाथ में फिट हो जाए उतना खाते हैं, या मुंह में जितना फिट हो जाए उतना खाते हैं। फिर अगले दिन नहीं खाते, फिर अगले दिन नंगे पांव चलते हैं, चाहे कितनी भी गर्म जमीन हो। और कोई जीव जंतु हो तो वो वाइट साइक हाथ में लेके चलते हैं, उनको साफ करते हुए। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते। और यदि जैन धर्म में मुनि बन गए, दीक्षा ले लिया, कभी जीवन में माता पिता का शक्ल नहीं देखते, अनासक्त जीवन जीते। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर क्या ये अप्रूव्ड है? ये सोचने वाली बात है। भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता, ठीक है, वो कहते हैं कि हम शरीर से अनासक्त हैं, हम शरीर से अनासक्ति शो करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस तरह का तपस्या करते हैं। जिस प्रकार से एक टीचर है, वो एक बदमाश बच्चे को क्या करता है, क्लास के बाहर भेजता है और बोलता है कि जाकर अपने घुटनों पे बैठ जाओ। तो घुटनों पे क्यों बैठता है? उसको दर्द देने के लिए? नहीं, उसको लेसन देने के लिए कि अगली बार ये गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। हम लोग ये मटेरियल वर्ल्ड में हैं क्योंकि हम मरीज हैं, ये ध्यान रखिए। हमारे लिए भी तपस्या इंपॉर्टेंट है, पर किस प्रकार का तपस्या भी वो डिस्कस करेंगे हम। और क्या इस प्रकार का तपस्या जो जैन मुनि करते हैं, क्या इस प्रकार का तपस्या अप्रूव्ड है या नहीं है भगवत गीता में, हम वो भी देखेंगे। तपस्या करना क्यों? अपने आप को तकलीफ देने के लिए? तपस्या इसलिए करना है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, घर जाके बढ़िया छोले भटूरे खाओ, राजमा चावल खाओ, छोले भटूरे खाओ एकदम बढ़िया से, ऐसे बोलता है डॉक्टर? नहीं, खिचड़ी खाना, दलिया खाना, दवाई खाना, ORS पीना, बोलता कि नहीं बोलता डॉक्टर? क्या है ये? भी तो तपस्या है। क्यों है तपस्या? क्योंकि वो व्यक्ति मरीज है, इसीलिए तपस्या। पर क्या जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो फिर क्या उसको ये सब खाने की आवश्यकता है? नहीं। हम भी तो मरीज हैं, भगवान से रिवोल्ट करके मटेरियल वर्ल्ड में आए हुए हैं। और अभी हमारा दवाई क्या है और ब्लैंड फूड क्या है? तपस्या। पर क्या जब हम फ्री हो जाएंगे इस बीमारी से, फिर क्या ये तपस्या करने का आवश्यकता है? नहीं। फिर भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करेंगे। इस समय तपस्या इसलिए कर, पर किस प्रकार का तपस्या, ये भगवत गीता समझाता है। कुछ लोग करते हैं तपस्या, हम भाला लेते हैं, मैंने देखा है, अपने गाल के आर पार कर देते हैं, ये तपस्या है, काली को प्रसन्न करने के लिए। नीडल्स अपने शरीर में चुभाते हैं, तपस्या। चामुक लेते हैं, अपने आप को जोर जोर से मारते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। एक तो बहुत महान एक देश बनाकर बैठा है, वो आग बिछा देते, उसके ऊपर आग के ऊपर चलकर दिखाते हैं, ये तपस्या। हर प्रकार का अपने आप को प्रताड़ना देने के लिए हम तैयार हैं, हर प्रकार का प्रताड़ना देते हैं। हाँ, क्यों देते प्रताड़ना? यह सोचकर मैं भोगता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, बस इतने पे रुक जाते हैं, मैं भोगता नहीं हूं। अरे भाई, तो भोगता कौन है? आगे भी तो बढ़ो। मैं भोगता नहीं हूं, ये तो अच्छी बात है, भगवत गीता इतने पे थोड़ी रुकती है, मैं भोगता नहीं हूं, आगे भी तो बढ़ो। फिर भोगता कौन है? कौन है भोगता? भगवान। तो भगवान का सेवा करो ना, वो असली तपस्या है।
अपने आप के साथ मार कुटाई करना, अपने आप को टॉर्चर करना, ये तो भगवत गीता नहीं अप्रूव करता। कई बार मैं भक्तों से सुनता हूँ, नवदीप मंडल परिक्रमा पे गए, प्रभु जी मैं परिक्रमा कर लूँ, प्रभु जी नंगे पांव परिक्रमा कर लूँ, साथ में ना व्रत रखूंगा प्रभु जी, और दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं और फिर बाकी 6 दिन की परिक्रमा करते नहीं। ऐसा तपस्या किस काम का है? किसी काम का इस प्रकार का तपस्या नहीं। प्रभु जी चतुर्मास का व्रत कर लूं प्रभु जी। अरे हमारे लिए तपस्या प्रभुपाद जी बताकर गए हैं, हमारे लिए तपस्या है प्रचार, अपने जीवन को समर्पित कर देना उसमें, भगवत नाम को दुनिया में पहुंचाना। जब व्यासदेव सरस्वती के तट पर बैठे 17 पुराण लिखकर परेशान थे, और सरस्वती के तट पर बैठे और जब मेडिटेट किया तो क्या नजर आया? एक तरफ भगवान नजर आए बद्रिकाश्रम में, एक तरफ भगवान नजर आए, और भगवान जब मुड़े तो पीछे कौन थी? माया। और सारे जीव नजर आए जो उस माया से प्रताड़ित थे। ये तपस्या उनको बाहर निकालना। नहीं प्रभु जी हम ना अपना अपना कर लेना, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग घर बैठकर शांति से अपना अपना शांति से कर ले, कोई जरूरत नहीं है भगवान का नाम पर, ठीक है मत करिए। भारत भूमि ते जन्म हो लोचार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। यू आर नॉट फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ लॉर्ड चैतन्य। When you are not fulfilling the desire of Lord Chaitanya, he is not pleased. मैं भोगता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। आधे लोग तो यही अहंकार लेकर बैठे होते, मैं भोगता नहीं हूं तो कौन भोगता है? आगे भी तो बढ़ो, कौन है भोगता? भगवान। तो भगवान की सेवा करो। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसीलिए मैं शरीर को प्रताड़ना दूंगा। क्या ये इंटेलिजेंस है? मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? आत्मा। आगे बढ़ो। फिर आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। आगे बढ़ो। परमात्मा कौन है? जो हृदय में स्थित है। फिर आगे बढ़ो। उस परमात्मा से भी ऊपर कौन है? भगवान स्वयं, कृष्ण। परमात्मा तो उनके फर्दर पोर्शन है, वहां तक पहुंचो। इतने पे रुक जाना क्या काफी है कि मैं शरीर नहीं हूं? उसके आगे बढ़ना जरूरी है कि नहीं है? मैं शरीर नहीं हूं, अच्छी बात है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, नेक्स्ट स्टेप क्या है? परमात्मा भी मेरे अंदर स्थित है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? भगवान कौन है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? भगवान की आराधना किस प्रकार करी जाए? नारद पंचरात्र विधि पूरा दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में। उठाकर अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भगवान को तो बना दिया निरंकार। इसका कोई फॉर्म नहीं है, इसको रख दो साइड पे, बैठो ऐसे ध्यान करो बस। और ध्यान करते करते धीरे धीरे कराटे मारने लग जाओ। एक बार मैं लोटस टेम्पल में गया, दिल्ली में गया, अंदर जाकर बैठा, मैं कहा देखता हूं कि क्या है वहां पर। इस्कॉन टेम्पल के पास ही था, देखने के लिए गया, क्या मुझे कुछ तो होगा, देखूं जाके एक बार। गया, जाकर अंदर जाकर बैठा, पूरा अंधेरा क्रिएट किया हुआ अच्छे से, जैसे कोई एकदम लाइट गई हुई है, एसी चल रहे हैं, कोई विग्रह नहीं भगवान का, कुछ नहीं। बैठे हैं सब एकदम बढ़िया, संगमरमर की फर्श है, बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे। मैं भी बैठ गया, तो मैं अपना महामंत्र जप कर रहा था, मैं वो करता रहा। एक आकर बोला बोलना नहीं है यहाँ पर, मौन व्रत धारण करना। मैंने कहा ठीक है, मैं चुप हो। मैं भी बैठ गया, 2 मिनट तक बैठा रहा। मैंने कहा देखता हूँ मन लगता है कि नहीं लगता है। जैसे ही बैठा 5 मिनट बाद साथ वाले के खराटे की आवाजें आने लगी। तो ये निरंकार है। हम डिनाई नहीं करते, निरंकार फॉर्म है, बट उसके ऊपर साकार फॉर्म भी है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये, तपस्या का पर्पस ही भूल गए क्या है। तपस्या का पर्पस तो है भगवान की प्रसन्नता, और भगवान प्रसन्न है नारद पंचरात्र विधि। जिस प्रकार से यदि आप घर पे एक एक्टर की फोटो लगा लें, होते ना कुछ लोग होते हैं अपना आइडियल बनाया होता है, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, इनको आइडल बनाया हुआ होता अपना, फोटो लगा लेते अपने कमरे में। और क्या साउथ इंडिया में तो इतना पागलपन है, पता है, मंदिर बनाए हुए किसके नाम पर? रजनीकांत। अंदर रजनीकांत की मूर्ति है, उसका अभिषेक करते।
वो बैठ के दारू पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, दारू पी रहा है, उसका मंदिर बनाया हुआ, पूजा कर रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं। क्या नॉनसेंस, नॉनसेंस है बिल्कुल। नारद पंचरात्र विधि, जिसका फोटो लगाओगे उसका स्मरण आ जाएगा। तो भगवान ने बोला मेरा जो फॉर्म है ये तो तुम देख नहीं सकते, इतना तुम्हारे नेत्रों में शक्ति नहीं है। भगवान ने बोला ठीक है, विग्रह, विग्रह को स्थापित करो, उसका दर्शन करो। जब उसका दर्शन करोगे तो मेरा स्मरण आएगा, है कि नहीं? जब उसका दर्शन करोगे तो मेरा स्मरण आएगा, मेरे विग्रह का दर्शन करोगे तो। इसीलिए हम विग्रह की पूजा करते हैं, ताकि भगवान का स्मरण आए। एक्चुअली में देखा जाए ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने धर्म है ये सब सनातन से ही निकले। कैसे निकला बौद्ध धर्म? पहले त्रेता द्वापर में अश्वमेध यज्ञ होते थे, गाय को, घोड़े को अग्नि में डाल दिया जाता था। क्यों डाल दिया जाता है? इतने एक्सपर्ट ब्राह्मणास थे, जब उसको अग्नि में डालते थे तो इमीडिएटली विजिबली दिखता था कि वो गाय और घोड़ा किस में कन्वर्ट हो गया, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य शरीर। ये तरीका था यज्ञ करने का। बाद में धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव आया, जैसे जैसे युग पागल आगे बढ़ते पागलों की तादाद बढ़ती जाती है। जैसे किसी बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दो, क्या करेगा वो? कहाँ चलाएगा कुछ नहीं पता, चारों तरफ घुमा के चलाएगा, कितने मारे जाएंगे कुछ नहीं पता। ऐसे ही कुछ पागल इकट्ठे हो गए, यज्ञ करने लग गए। यज्ञ में क्या करते थे? गौ मांस को, घोड़े के मांस को रोस्ट करके फिर खा जाते थे। उसको मनुष्य शरीर मिलना तो दूर का बात, अनक्वालिफाइड, तो फिर आना पड़ा विष्णु को। केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे। बुद्ध के फॉर्म में वेदों को गलत बताना पड़ा। क्यों? वेदों के दम पर मांस भक्षण हो रहा था, उस समय वो नीड थी सोसाइटी की। तो एक्चुअली में देखो तो बौद्ध धर्म निकला तो यज्ञ के वजह से, सनातन धर्म से ही निकला। अहिंसा परो धर्मा, ये है बुद्ध धर्म, बस अहिंसा परो धर्म। ये इस्कॉन की बिगिनिंग है, अहिंसा परो धर्म, नो मीट फिश एग ईटिंग, और 3 और हम साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। हाँ, ये तो 4 तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, वो एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, अहिंसा परो धर्म। और वो भी देखो कितने बौद्ध ऋषि होते हैं जो बढ़िया एकदम खाते पीते हैं अच्छी तरीके से। अहिंसा परो धर्म एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, ध्यान रखें। सो विच वन इज हायर, बुद्धिज्म और वैष्णविज्म? बुद्धिज्म और वैष्णविज्म, विच वन इज हायर? वैष्णविज्म। Buddhism has 1, no meat fish egg eating. Vaishnavism has 3 more complementary, no intoxication, no gambling, no illicit sex, plus 16 rounds of chanting, vigraha darshan, services, blissful life, बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है। भगवत गीता में कुंती महारानी, श्रीमद् भागवतम में मेरे पीछे एक श्लोक दोहराएंगे। पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 36वां श्लोक है, कोई खोलना चाहता है तो खोल सकता है। अब तपस्या क्या है, ये अभी तक तो मैंने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए कि क्या तपस्या टॉर्चरस है। तपस्या नहीं है, टॉर्चर है। तो देखते हैं अब कुंती महारानी क्या कहती हैं। पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 36वां श्लोक। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणा सा, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, भव प्रावह रूपम पदम भुजम। ट्रांसलेशन में क्या कहते हैं कुंती महारानी? ओ कृष्णा, दोज हु कंटिन्यूअसली हियर
Understand this. Kunti Maharani. O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. ये तपस्या है. शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति. क्या मतलब है? कॉन्स्टेंटली सुनना, कॉन्स्टेंटली चैंट करना और कॉन्स्टेंटली रिपीट करना. क्या रिपीट करना? कृष्ण का नाम, कुंती महारानी का. ये तपस्या. यदि आप भगवत गीता देखें, 17वां अध्याय खोल सकते हैं भगवत गीता का, 17th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, और इसका 14th श्लोक. तीन तरह की तपस्या बताई है 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में. वन इज तपस्या ऑफ बॉडी, शरीर का तपस्या, भगवत गीता बताता है. 15वां श्लोक बताता है तपस्या ऑफ वाणी, स्पीच का तपस्या, शरीर का तपस्या, वाणी का तपस्या. और 16वां श्लोक बताता है मन का तपस्या, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड. तीन तरह की तपस्या जो हमें करनी है. क्या क्या? ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड. ये तीन तपस्या भगवत गीता एक्सप्लेन करती है. ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी क्या है? पढ़े भगवत गीता का 17वें अध्याय का 14वां श्लोक बोलता है. ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी कंसिस्ट्स इन वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. भगवान का पूजा करना, विग्रह का पूजा करना, ये शरीर का तपस्या है. और किसका पूजा करना? ब्राह्मणों का. ब्राह्मणों का पूजा किस प्रकार किया जाता है? कौन बताएगा? कैसे करते हैं? ब्राह्मणों का बेस्ट पूजा क्या है? कौन बताएगा? यस प्रभु ना. ब्राह्मणों का बेस्ट पूजा क्या है? ब्राह्मणों का पूजा कैसे करें? बेस्ट पूजा. पैसे देना, हाँ, लिफाफे भर भर के देना ब्राह्मणों को. ब्राह्मण अपना पेट एकदम मोटा मोटा कर लेते खा खा के. हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, ब्राह्मणों के लिए. हाँ, नो, ओ इट इज अ वेरी बेसिक लेवल थिंग. ब्राह्मणों का पूजा किस प्रकार किया जाए? कानों से सुन करके. पर अभी ये भी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा और. ये ठीक है, ये तो ठीक आंसर है, कानों से सुन के. इससे आगे ठीक है, वो तो सेम ही है, भगवान के बारे में सुनना. ब्राह्मणों को कैसे पूजा जाए? फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है. ये तपस्या है. वाणी को फॉलो करना, ये तपस्या है. थोड़ा लिफाफा दे दो, ये छोटे लेवल का तपस्या. थोड़ा प्रसाद खिला दो, ये छोटे लेवल का तपस्या. सुन लो, ये भी ठीक है, पर सुन के कुछ करो मत, फिर क्या? यूजलेस. पर सुन के फॉलो करो, ये ब्राह्मणों का पूजा है और ये शरीर का तपस्या है. और जब ब्राह्मण पगला जाता है तो श्राप भी दे देता है ना. तो इसीलिए ब्राह्मणों का इंस्ट्रक्शंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. कौन सा भक्त शुद्ध ब्राह्मण होगा हमें पता नहीं, इसीलिए पंगा नहीं लेना चाहिए. एक्सटर्नली किसी को जज नहीं करना चाहिए. और क्या है? शरीर का तपस्या. और क्या है? भगवान की पूजा. और किसकी पूजा? ब्राह्मणों की पूजा. और किसकी पूजा? स्पिरिचुअल मास्टर. पर गुरु भी कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड गुरु होना चाहिए, संप्रदाय में होना चाहिए. गुरु की पूजा. और किसकी पूजा बता रहे भगवान? माता पिता की. माता पिता की भी. ये भी इंपॉर्टेंट है. और क्या शरीर का? क्लेanलीनेस. हमारे इंस्टीट्यूट पे कुछ बच्चों के बीच में कंपटीशन लगता है, कौन 3 दिन से नहीं नहाया, कौन 4 दिन से नहीं नहाया, कौन 5 दिन से नहीं नहाया. कंपटीशन लगता है. क्लेanलीनेस,
ये शरीर का तपस्या, शरीर को साफ सुथरा रखना। भगवान कह रहे हैं, जो जैन मुनि है उनका तपस्या, कई कई दिनों तक नहाते नहीं है। क्या भगवत गीता उस चीज को अप्रूव कर रहा है? नहीं। नहाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया शरीर पर आएंगे, फिर उन बैक्टीरियाज को मर ना जाए, वो क्या बना दिया उठा। और क्या बताया शरीर का तपस्या? बोलो अभी तक मेरे साथ याद करो, शरीर का तपस्या क्या? आज याद करके निकलो। तीनों तपस्या करोगे, शरीर का तपस्या भी करोगे, वाणी का तपस्या भी करोगे, मन का तपस्या भी करोगे, करोगे तीनों तपस्या। तो शरीर का तपस्या क्या है? भगवान का पूजा। दूसरा, ब्राह्मणों का पूजा। ब्राह्मणों का पूजा कैसे? इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। तीसरा, गुरु का पूजा। चौथा, हाँ, माता पिता। पांचवा, क्लेanलीनेस, शौच, सफाई मेंटेन करना। नो इलिसिट सेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, हम मंदिर, आज कई बार ये नहीं पता लगता कि माताएं बहनें प्रभु जी मंदिर आए हैं तो दर्शन लेने आए हैं या दर्शन देने आए हैं। कई बार ये नहीं पता चलता। ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं कि खुद को अगर आईने में देख ले। मंदिर में मैं बोलूँगा मैनेजमेंट में, यहाँ एक बड़ा सा शीशा लगा दो मंदिर में। कोई मंदिर में घुसे अपने आप को जरूर देखे शीशे के आगे। शर्म आ जाएगी कि भक्तों के आगे किस फॉर्म में हम आए, भगवान के आगे। अरे दर्शन लेने आए हैं कि दर्शन देने आए? ऐसा स्ट्रॉन्ग एकदम परफ्यूम छिड़क कर आएंगे जो चारों तरफ जो है इत्र का स्मेल ना हो, और क्या एकदम ऐसे छींके आने लग जाए लोगों को, इस प्रकार का। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट्स कृष्णा। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के नाम पे ये भी चुप हो गया। अच्छा, हाँ है। और क्या शरीर का तपस्या बताओ, क्या क्या याद करो। ये तो याद करना पड़ेगा और फॉलो भी करना पड़ेगा, नहीं तो मदन रूप पीछे पड़ेगा। हाँ, क्या क्या बोलो? हाँ बोलो। विग्रह पूजा, ब्राह्मण पूजा, और गुरु पूजा, और माता पिता, और शौच, क्लेanलीनेस, और सिंप्लिसिटी। सिंपल ड्रेसेस पहनकर आना, कोई ज़्यादा शोई ड्रेसेस पहनकर मंदिर नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला है ना, प्रभुपाद जी का मंदिर है, प्रभुपाद जी चाहते थे उनके जो शिष्य है क्या पहनकर आए? साड़ीज। प्रभु जी लोग क्या पहनकर आए? धोती कुर्ता। प्रभु जी नहीं, धोती कुर्ता तो ठीक, प्रभु जी बढ़िया ब्लू धोती कुर्ता, नीचे से एकदम सिल्क का बढ़िया धोती होना चाहिए ना। लोग देखे कोई आया मंदिर में, से कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं है। श्रीमद् भागवतम बोलती है, हाँ श्रीमद् भागवतम बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। कलयुग में पुरुष जो है वो बाल बढ़ाएंगे और माताएं जो है वो बाल कटवाएंगी। ये श्रीमद् भागवतम बताती है। तो सिंप्लिसिटी। अगला क्या है? सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का पालन। ब्रह्मचार्य, प्रभु जी अब तो शादी हो गई ना, अब तो ब्रह्मचारी है। गृहस्थ ब्रह्मचारी भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो शादीशुदा तो है। एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। ऐसा व्यक्ति जो शादीशुदा तो है बट illicit sex can be with wife also। अगर वो जो काम का इच्छा है वो ऐसे भक्तों को उत्पन्न करने के लिए नहीं है जो भगवान की सेवा करे, इंजॉयमेंट के लिए काम, चाहे परस्त्री से हो चाहे अपनी वाइफ से हो, वो इलिसिट ही है, अवैध ही है। सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ है जो ब्रह्मचारी है उसको तो ब्रह्मचार्य का पालन करना ही है। जो भी अनमैरिड स्टेट में, ये जो बॉयज जितने बैठे हैं ये सब ब्रह्मचारी हैं इस टाइम। बस बाल नहीं मुंडवाए, पर क्या है सब?
क्या है? जब तक शादी नहीं हुआ क्या है? ब्रह्मचारी। और गृहस्थ भी जो है वो ब्रह्मचारी है। बेस्ट बेस्ट। वरना कोई अगर शादी के बाद भी, आफ्टर मैरिज भी अगर एंगेज होता है अपनी वाइफ के साथ, हाँ, इनटू सेक्स लाइफ, गृहस्थ लाइफ कोई लाइसेंस नहीं है सेक्स लाइफ में घुसने के लिए। ऐसा व्यक्ति गृहमेदी है, वो गृहस्थ है भी नहीं, वो गृहमेदी है। और जो बच्चे इस तरीके से उत्पन्न होंगे वो बच्चे बच्चे नहीं होंगे, राक्षस होंगे। एक मदर आई मेरे पास अपने बच्चे को लेकर मेरे कोचिंग सेंटर पे, अरे सर ये देखो आपकी बहुत सुनता है, इसको समझाओ, मुझे पता चला इसने बियर पीना शुरू कर दिया, इसने शराब पीना शुरू कर दिया, तो आप समझाओ सर इसको, ये आपकी बात सुन लेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा तुम जरा 2 मिनट बाहर वेट करो। तो उस बच्चे को बाहर भेजा। मैंने कहा बताओ अभी घर पे और कौन कौन पीता है? कहता घर पे तो सारे ही टून पड़े रहते हैं, फादर भी पीता है, दादा भी पीता है, सब पीते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बताओ लेडीज? कहते नहीं वैसे तो नहीं, बट ज्यादा दिमाग खराब हो जाए तो 2 पैक मैं भी लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा देखो फिर मैं तुम्हारे बच्चे का कुछ कर नहीं सकता। सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, सिंप्लिसिटी, ये सब शरीर के आभूषण है। अरे सोने में तो कलयुग का वास है, मत पहनो सोना। सोने में तो किसका वास है? कलयुग। आभूषण क्या है? भगवान बता रहे हैं यार, भगवान बता रहे हैं, सुनो तो सही ना। भगवान बता रहे हैं क्या है आभूषण, क्या है आभूषण। जितनी माताएं हैं प्रभु जी को इशारा कर रही है, गोल्ड खरीदना कल को बोला था, अब आज नहीं दिलाना। जितनी माताएं हैं गोल्ड मांगना बंद कर देना चाहिए, कलयुग है इसमें। मैं तो अपने घर वालों के पीछे पड़ा रहता हूँ, गोल्ड बेच के मंदिर को दे दो पैसा, मंदिर बनना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। प्रभु जी बहुत ना इम्प्रैक्टिकल है ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाईएस्ट प्रैक्टिकलिटी है भगवान की सेवा, किसी भी तरीके से, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से। और आखिरी क्या है शरीर का जो तपस्या, वो क्या है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, मांस भक्षण ना करना, वो तो शायद मोस्टली कोई भी नहीं करता। दूसरा तपस्या जो भगवान ने बताया वो किसका बताया? 15वें श्लोक में वो किसका बताया? वाणी का तपस्या। वाणी का क्या तपस्या बताया? मैं डायरेक्टली ट्रांसलेशन पढ़ू। ट्रूथफुल पहला तपस्या। वाणी का क्या है? सच बोलना। सच बोलना नहीं प्रभु जी, मैं ना आधा सच बोलकर आ गई प्रभु जी। तो आधा सच भी किस प्रकार है? झूठ। वो झूठ ही है, पूरा सत्य बोलो। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरा सत्य बोलना एज इट इज। आपको पता है हमारे रिटर्न फॉर्म में शास्त्र क्यों है? क्योंकि द्वापर तक जो लोग आपस में ज्ञान देते थे, वेद आगे बढ़ते थे, द्वापर में सिर्फ वाणी पे बढ़ते थे, क्योंकि कुछ चेंज नहीं करता था कोई। अभी मैं एक दिव्यम के कान में कुछ बोलूंगा, या आगे उसको बोलेगा, आगे उसको बोलेगा, लास्ट व्यक्ति से पूछूंगा ना क्या बोला। हाँ, मैंने इसके कान में बोला दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो बोलेगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हाँ? चेंज हो जाएगा, पूरा वर्जन ही चेंज हो जाएगा। ट्रूथफुल एज इट इज बोलो जो बोल रहा। दूसरा वाणी का तपस्या क्या है? ऐसा कुछ बोलो जो दूसरों को एजिटेट ना करे, दूसरों को तंग ना करे। नहीं, इसको तो सबक सिखा कर आऊंगा, हाँ, इसको तो बढ़िया से सबक सिखा कर आऊंगा, ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं काट भी दूंगा और फिर सहला भी दूंगा। ये जनरल टेंडेंसी है, बहुत डेंजरस है। भगवान कह रहे हैं ये वाणी का तपस्या है। कुछ भी ऐसा मत बोलो जो किसी को तंग करे, किसी के हृदय को दुख पहुंचाए। ये वाणी का तपस्या है। जो 2 इंच की जीभ होती है ना, इसमें हड्डी तो नहीं होती, पर कभी गलत बोल दो तो हड्डियां जरूर टूटेंगी, है ना। बिना हड्डी के देखो क्या क्या कारनामे होते हैं, तो समझने वाला। और क्या वाणी का तपस्या? हर वक्त क्या करना? कृष्ण कथा, हर समय कृष्ण कथा करना, ये वाणी का तपस्या। और तीसरा तपस्या भगवान ने कौन से श्लोक में बताया?
16वें श्लोक में। वो किसका तपस्या? मन का तपस्या। मन का तपस्या क्या है? हर समय सेटिस्फाइड रहना। एक बार क्या होता है, एक राजा बोलता है, अपने चौकीदार को देखता है, ये चौकीदार हमेशा खुश कैसे रहता है? अपने मंत्री को पूछता है, ये हमेशा खुश रहता है, मेरे पास इतना कुछ है, ये मैं खुश नहीं रहता। इसके पास कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, ये हमेशा खुश रहता है, क्या रहा? तो मंत्री ने बोला, आज से 1 हफ्ते बाद ये खुश नहीं रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो राजा बोलता है, ऐसा क्या करोगे? तो खुश रहने वाला नहीं, मैं तुमको करके दिखाऊंगा, 1 हफ्ते बाद खुश नहीं। बोले ठीक। तो मंत्री जाता है, उस चौकीदार के घर के बाहर 99 सिक्के फेंक कर आ जाता है। कितने? 99 सिक्के। तो चौकीदार की पत्नी बाहर आती, देखती 99 सिक्के, आती उठाकर लाती है, बड़ी खुश होकर अंदर लेकर आती है, गिनना शुरू करते हैं दोनों पति पत्नी मिलकर, और गिनते हैं तो 99 सिक्के निकलते हैं। हाँ, बस 99 सिक्के, 100 क्यों नहीं है? पति की जान खाना शुरू, मुझे 100 सिक्के चाहिए, 100 सिक्के चाहिए, 100 सिक्के चाहिए। ठीक है, अब तुम 3 जॉब करो। अभी मॉर्निंग शिफ्ट राजा के यहां कर रहे हो, बनिए के यहां करो दोपहर का शिफ्ट, और रात का शिफ्ट भी बनिए के यहां करो। मुझे किसी भी 3 जॉब करके 1 सोने का सिक्का मिलेगा, मेरे 100 सिक्के पूरे हो जाएंगे, मैं खुश रहूंगी। वो बेचारा जो चौकीदार होता है वो दुखी रहने लग जाता है। राजा देखता, हाँ ये तो तुमने सही बोला। तो यदि कोई सोचता है कि धन सेटिस्फैक्शन दे सकता है, धन तो उल्टा एजिटेशन क्रिएट कर देता है। पैसा हाथ का मैल है, ये सच है, मैल ही है, डिससेटिस्फाइड ही रहोगे इससे, ये कभी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। तो मन का तपस्या और क्या है बताइए? सेटिस्फाइड रहना, जो है ठीक है। और क्या मन का तपस्या? सेल्फ कंट्रोल। और क्या है? अपने आप को हर समय निरंतर कोशिश करते रहना, किस प्रकार से मेरे मन से जो ये मन बुद्धि अहंकार का जो कवरिंग है आत्मा पे, ये खत्म हो। और ये कैसे खत्म होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन का तपस्या क्या है? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम। पर उल्टा होता है, हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरिम। धनम का क्या अर्थ है? धन। जन्म का क्या अर्थ है? फॉलोअर्स। सुंदरिम मतलब सुंदर कन्या। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके ही अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? 17वें श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 श्लोक जो है। दिस 3-fold ऑस्टेरिटी। कौन सा 3-fold ऑस्टेरिटी? मन का, शरीर का, वाणी का। परफॉर्म्ड विथ ट्रांसेंडेंटल फेथ। थोड़ा दर्द जरूर होगा, पर फेथ के साथ इनको फॉलो करो। नॉट एक्सपेक्टिंग मटीरियल बेनिफिट्स इन रिटर्न। कुछ मत रिटर्न में एक्सपेक्ट करो, बट एंगेज्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम। सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर इस प्रकार का तपस्या करा जाए, इसको क्या कहते हैं? ऑस्टेरिटी इन गुडनेस, सतोगुण का ऑस्टेरिटी। अगला पढ़ते हैं, 19वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ऑस्टेरिटी परफॉर्म्ड आउट ऑफ फुलिशनेस। बेवकूफों की तरह कोई भी तपस्या लेके बैठ जाना। सेल्फ टॉर्चर, बताया था अभी जैन मुनियों का एग्जाम्पल। सेल्फ टॉर्चर टू डिस्ट्रॉय और इंजर इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इस प्रकार का जो तपस्या है, जिसमें आप अपने आप को टॉर्चर देने का प्रयास करते हैं जबरदस्ती, इस प्रकार का तपस्या जो है वो क्या है? तमोगुणी तपस्या है। तमोगुणी तपस्या से सतोगुण कैसे आएगा? एक्चुअली में वो लोग चाहते हैं कि सतोगुण आए, पर तमोगुणी तपस्या कर रहे हैं, तो सतोगुण तो आ नहीं सकता। तो इसीलिए जो भगवत गीता में तपस्या बताया गया वो करिए, वही हमारे लिए बेस्ट है। समझ आता है सबको? किसी के कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? यस प्रभु। आपने कहा था, क्योंकि आपने बताया था कि हमें प्लीजिंग वे में बात करनी है, पर कई बार मेरे साथ सिचुएशन होती है जहाँ पर सामने वाले जो है हम जो चीज़ें कर रहे हैं फोन में, और फिर भगवान के प्रति या फिर गुरु के प्रति थोड़ा अच्छे से बात नहीं करते, तो ऐसे में भी कैसे रिएक्ट करते?
ठीक है, तो ऐसे को ज़्यादा कोई प्रीच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो नेशियंस में पड़े रहना चाहते हैं, पड़े रहने दीजिए, और क्या कर सकते हैं। डोंट प्रीच। एक आधी बार आई हैव अ जनरल पॉलिसी, मेरी जो मतलब जो मेरे को जनरल पॉलिसी सही लगती है, जो मैंने अपने सीनियर्स से भी देखा, कोई व्यक्ति जुड़ता है एक बार उस पर बहुत ध्यान दिया जाता। पहले तो किसी को कोशिश करते हैं जोड़ने की, जब 2-4 बार में लगे कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। दुनिया बैठी है जो जुड़ना चाहती है, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ो जो जुड़ना चाहें, पहला। दूसरा स्टेप, जो जुड़ गए हैं यदि वो उस लेवल का सिंसियरिटी दिखाएं तो फिर उनके साथ उस हिसाब का रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। पर जो जुड़ गए हैं, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, पर ढीले ढाले, धीरे धीरे फेडेड अवे केसेस बन जाते हैं वो भी। बस ठीक है, कभी आ गए मंदिर में जन्माष्टमी में हरि बोल करने के लिए, बस उतना बहुत है। तो जनरली तो यही पॉलिसी होती है प्रीचर्स की कि इनिशियली कोशिश सबको करो जोड़ने की, उसके बाद कोई इंटरेस्ट ना दिखाए तो छोड़ दो। फिर कोई जुड़ने के बाद भी साफ पता चल रहा है कि ढीला ढाला ही चलना चाहता है, अच्छा नहीं करना चाहता, तो धीरे धीरे फिर वो अगर फेडेड अवे केस बनना चाहते हैं तो बनने दो। जनरल 2 लेवल्स पे प्रीचिंग करना चाहिए। एक होता है जो एकदम सिंसियर क्राउड है, उनको बहुत अच्छे से होल्ड करना चाहिए भक्ति में, क्योंकि वही लोग आगे प्रचार एक्सपैंड करेंगे, भगवत नाम फैलेगा। और दूसरा, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अच्छा चल रहे हैं और इस पाथ पे हैं कि कल का दिन बहुत सिंसियर हो जाएंगे, उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? और कोई प्रश्न? गृहस्थ ब्रह्मचारी वो है जो जरूरत से ज्यादा कलेक्ट नहीं करता, जरूरत से ज्यादा ग्रीड के पीछे इकट्ठा नहीं करता, और अगर जरूरत से ज्यादा भगवान की कृपा से आ जाए तो दे देता है। भगवान भी तो दे रहे, पानी दे रहे ना पीने को। सारा दुनिया का धन इकट्ठा कर दो, अगर भगवान ने पानी का सप्लाई बंद कर दिया मर जाओगे। समझे? पानी का सप्लाई कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। ग्रेन्स का सप्लाई कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। सारा दुनिया का धन इकट्ठा कर लो, भगवान ने पानी का सप्लाई रोक दिया, फिर क्या होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, और अगर जरूरत से ज्यादा बाय फेट आ गया है तो ये नहीं वहां भी प्रॉपर्टी खरीद लूं, वहां भी प्रॉपर्टी खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। गिव इट इन सर्विस ऑफ प्रभु जी। बच्चों का क्या होगा? ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दो, बट इसका मतलब ये नहीं है ना बच्चों को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी देकर जाओ। सोचने वाली बात है। बच्चों को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी देकर जाओ ऐश करने के लिए, खुद मर जाओ, वो बच्चे पीछे से श्राद्ध भी ना करें। श्राद्ध वाले दिन शराब के नशे में टुन्न होके लेटे हुए बच्चे, बताओ। ऐसा धन अगर बच्चे को दे दिया तो किस काम का? जरूरत से ज्यादा कलेक्ट नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गृहस्थ का। वो अगर कोई जरूरत से ज्यादा कलेक्ट करके इकट्ठा रखता है वो गृहमदी है, वो गृहस्थ है ही नहीं, ठीक है। वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है जो लिमिटेड कलेक्ट करता है, और अगर आ गया तो दे देता है। दूसरा, अननेसेसरी सेक्स लाइफ में एंगेज नहीं होता, सिर्फ तब जब भगवान के शुद्ध भक्त चाहिए होता है। भगवान वो कहते हैं भगवत गीता में, मैं वो काम हूं, आई एम द सेक्स लाइफ। भगवान कह रहे हैं मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे काम में इन्वॉल्व होएगा जो कि कृष्ण भक्तों को उत्पन्न करने के लिए हो रहा है, तो स्वयं भगवान प्रकट हो जाएंगे बच्चे के फॉर्म में। भगवान के शुद्ध भक्त आ जाएंगे। पर कोई सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए लगा हुआ है। आइडियली देखिए, मैं तो और इससे भी हाई प्रिंसिपल बोल सकता हूं, बट पता नहीं कितने लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इससे भी हाई प्रिंसिपल है नॉट टू एंगेज। इवन एक एज के बाद जब वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग जब वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है तो हस्बैंड और वाइफ को एक रूम में भी नहीं रहना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे हो चुके हैं, दे आर डूइंग वेल, वरना अननेसेसरी सेक्स लाइफ चलेगा 50-50 60 साल की उम्र तक, नो यूज। तो ये गृहस्थ ब्रह्मचारी है। हाँ, जो आपका नीड है, ये तो देखो बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, ये हमेशा सीनियर्स से डिस्कस करना चाहिए। सब्जेक्टिव मैटर है ना, किसकी क्या नीड है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी का खर्चा 10 लाख का हो सकता है किसी का 1 करोड़ का हो, तो अब वो तो नीड बेस्ड पे डिपेंड। पर नीड के नाम पर ये ना हो
कि भाई मैं तो बहुत बड़ा बंगलो बनाऊंगा, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। मैं कल कुछ ही भक्तों से मेरी कुछ बात हो रही थी, मैंने कहा धन है ना, बस धन आ जाए ना, एक ऑडी खरीद के ना बढ़िया, उस ऑडी को क्या करेंगे, उसको लेकर घूमेंगे नहीं, उस ऑडी में दे भगवत गीता की पेटियां भर के एरिया की लाइट पे ले जाकर खड़े कर देंगे और भक्तों को भेजेंगे ऑडी में से निकाल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑडी को भी तो उसकी औकात पता चलनी चाहिए क्या है। भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए सब कुछ। खरीदो BMW पर उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दो, खड़े रहे वहां पर धूप में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, जब BMW खुले तो ऐसे फौज की फौज लड़कों की निकले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वो लड़के सड़कों पे घूम घूम के लोगों से 200-200 रुपए मांग रहे हैं। लोग भी तो समझेंगे। यस, यू शुड। कभी शॉर्टेज नहीं होगा, ये फॉर श्योर है, गारंटीड है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये। नहीं, कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन जब आप जैसे आपने बताया वेरियस फॉर्म ऑफ बॉडी टॉर्चर, सो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप व्रत नहीं रख पाए जैसे, और या व्रत रख के रहे हैं हो सकता है तो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, यस, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी। कोई निर्जल फास्ट रख कर बैठ गया, शरीर नहीं अलाउ कर रहा, जप ही नहीं कर पा रहे, फिर ऐसा व्रत भी किसी काम का नहीं। हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अन्न खाने बैठ जाओ, राजमा चावल बना के खाऊंगी एकादशी के दिन, तो नहीं, ये भी नहीं समझे। फिर ठीक है, अगर निर्जल फास्ट नहीं कर पा रहे, अभी निर्जला एकादशी आ रही है, देखो क्वेश्चन उठ गया, तो 18 जून को निर्जला एकादशी है, पता है सबको। कोशिश करिए सब उस दिन कंठी माला पहन लीजिए, बहुत समय हो गया, सबसे बड़ी एकादशी है साल की, फिर अगले साल ये मौका मिलेगा। तो निर्जला एकादशी है 18 जून को, तो ठीक है, नहीं अफोर्ड कर पा रहे, बॉडी नहीं अलाउ कर रहा है, चैंटिंग भी नहीं कर पा रहे, अब इसका क्या फायदा, व्रत करके बेड पे लेट गए, व्हाट इज द यूज। ठीक है, फिर लिक्विड्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, शरीर उतने में भी तो मेंटेन रहेगा ना। ग्रेटिफिकेशन मत करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नो अदर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। तो 18 जून को निर्जला एकादशी महामहोत्सव की कितने लोग निर्जल फास्ट रखेंगे इस बार निर्जला का? प्रभु जी टॉर्चर, अभी तो आपने बोला टॉर्चर, अरे भैया साल में एक बार तो चलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़ी टॉर्चर लेना। निर्जला एकादशी कितने लोग निर्जल फास्ट रखेंगे मेरे साथ? हरी बोल। हम निर्जला एकादशी को इस बार बहुत स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं, जागरण। जागरण सबको रात भर मेरे साथ जगना है, यहाँ मंदिर में कीर्तन होगा जोरदार, हरी बोल। रात भर हम निर्जला, एक पूरा दिन निर्जला एकादशी का फास्ट रहेगा, रात भर कीर्तन चलेगा, और छोटा मोटा कीर्तन नहीं, एक्सटैटिक कीर्तन चलेगा, रात भर चलेगा। सुबह तक सब शुद्ध भक्त बन जाने चाहिए जब भगवान का ऑल्टर खुले। मंगल आरती, मंगल आरती के बाद, उसके बाद हम आप सबको यहीं पे जूसेस देंगे प्रसाद में, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ऑनलाइन क्या